Hello everyone, welcome back to our YouTube channel KS Academy One Step to Success. You can join us on Facebook also. Today's topic of discussion is unit measurement of matter. Here we are going to study about 7 basic fundamental quantities and their units. Before moving further, do not forget like, share and subscribe our channel. On Facebook also, kindly follow our page. Fundamental units. The quantity of mass, length and times are called as fundamental quantities and their units are known as fundamental units. These are 7 basic units of measurement for the quantities are length, mass, time, temperature, amount of the substance, electric current and luminous intensity. All the fundamental quantities have a definite units and these units are defined by SI system. This system of measurement is the most common system employed throughout the world. It has given unit for all the 7 basic quantity listed above. The full form of SI unit is Standard International System. It is an international system of unit for the measurement. SI in a measure system that is dependent on the 7 basic units. So these are the 7 basic units. Physical quantities are length has denoted as small l and the name of the SI unit is meter and the unit is small m. Mass has a symbol small m and unit has a kilogram and the symbol for the unit is small kg. Time has a symbol small t and unit has a second with a symbol small s. Electric current has a symbol small I and the unit of electric current is ampere denoted as a capital A. Temperature has a symbol capital T and the SI unit for the temperature is Kelvin and it is denoted as capital K. Amount of a substance is denoted as a small n and the name of SI unit of the amount of the substance is mole and the unit notation is MOL mole. Luminous intensity has a symbol capital K and name of SI unit is candela and it is denoted as a small CD. Definition of the basic SI units. Meter, it is the length of the path traveled by the light in a vacuum during a time interval of 1 by 299792458 of the second. Kilogram, it is the unit of mass. It is equal to the mass of international prototype of the kilogram. Second, it is the duration of 9192631 770 period of radiation which is correspond to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the Ca 133 atom. Kelvin, it is a unit of thermodynamic temperature and it is equal to 1 by 273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of the water. Ampere. The ampere is that the constant current which is mentioned in above straight parallel conductor of an infinite length of negligible circular cross section and the placed 1 meter apart in a vacuum would produce between this conductor a force equal to 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter of the length. Candela, it may be defined as the luminous intensity in a given direction for a source which emits the monochromatic radiation of the frequency 540 into 1012 Hz and that has a radiate intensity in that direction of 1 by 683 watt per centigram. Mole, it is the amount of substance which contain as many elementary entities and there are atom in a 0.012 kg of carbon 12. Its symbol is mole. Length. So length of particular substance that is considered as a rubber. So eraser, that is our eraser. So it has a length of 5 centimeter. हमने ये भी देखा हुआ है कि हमारे जो कंपोस्ट बॉक्स में रबर है या फिर पेंसिल है या फिर कोई भी एक ऐसी लेंथ है जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हम एक स्केल का यूटिलाइजेशन करते हैं फॉर मेजरिंग द पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस. हमें 1 पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट तक के लेंथ का फाइंड आउट करना है तो हम इस स्केल को मेजरिंग यूनिट के लिए हम लोग यूज करते हैं. सिमिलरली हम आगे देख लेते हैं कि दीज आर द डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर लेंथ. So this is the meter
लेंथ यूज बाय द कारपेंटर्स, सो इसमें मीटर में होता है, सेंटीमीटर में होता है, मिलीमीटर में भी होता है. देन इन दिस स्केल सेंटीमीटर में हमको और में भी पता चलता है. दिस मीटर टेप इज यूज बाय द मोस्टली टेलर. और ये जो सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे लैब में हम लोग यूज करने वाले, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्नियर कैलिपर. और ये तो हमको पता ही है, जिसे हम हमारे कंपास बॉक्स में देखते हैं और हम बोलते भी प्रोटेक्टर हम इसको बोलते हैं. एंड देन इट विल यूज इन आवर ज्योमेट्री बॉक्स, और ज्योमेट्री के सब्जेक्ट में भी हम मोस्टली इसका यूज करते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए. देन इट विल, दिस इज द होमवर्क फॉर यू और ऑल. और आपको ये पता करना है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे जो दिया हुआ है उसका लेंथ क्या है. तो आपको अगर फोटो में ढंग से पता नहीं चल रहा होगा या फिर अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो आपको क्या करना होगा कि एक स्केल लेनी होगी 30 सेंटीमीटर की, और इस तरीके से कुछ सब्सटेंसेस कलेक्ट करने होंगे. जरूरी नहीं है कि आपको यही सब्सटेंस कलेक्ट करने, बट इस तरीके से छोटे बड़े मोटे जिस तरीके से भी आपको सब्सटेंस अवेलेबल होते हैं वो ले लीजिए और उनका लेंथ मेजर कीजिए. सो आपको हेल्प हो जाएगा कि किस तरीके से हम स्केल का यूज करते हैं. सो बेसिकली हम लोग फर्स्ट पॉइंट, जो जिस भी पॉइंट का या फिर जिस भी सब्सटेंस का हमको मेजर करना होता है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑलवेज भी पॉइंटेड एज अ जीरो, यहाँ पे आपको जीरो पे रखना होता है. एंड देन इट विल भी, जितना भी वो लंबा होगा छोटा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको स्केल पे मेजरमेंट मिल जाएगा. मास एंड द वॉल्यूम. मास, अगर आपको किसी सब्सटेंस का पता करना है तो पर्टिकुलर सब्सटेंस का मास कितना है. सो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एक कुछ मशीन्स होती है जिसमें हम लोग, जैसे हमारे बॉडी वेट हमको पता करना है तो हम एक मशीन्स पे खड़े हो जाते हैं और हमको हमारा वेट पता चल जाता है. बट मास और वेट में एक डिफरेंस है. मास इज अ मास ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस, बट वेट इज, इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी. जो मास रखा हुआ है उसके ऊपर ग्रेविटी कितनी एक्ट कर रही है वो होता है वेट. ठीक है, तो वेट हो जाता है मास इनटू द ग्रेविटी. एंड वेट ऑफ द सब्सटेंस एट वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ये हमेशा अनदर वेट क्या हो जाता है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी. वेट ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस इट विल बी चेंज, बट मास उतना ही रहेगा, मास कभी भी चेंज नहीं होता. वॉल्यूम, इट मीन्स द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द मैटर. कोई भी किसी भी चीज का आपको अगर वॉल्यूम पता करना है तो जितना वो स्पेस ऑक्युपाई करेगा दैट इज कॉल्ड एज अ वॉल्यूम. इट हैज द यूनिट ऑफ लेंथ मीटर क्यूब. इन द ऐसा यूनिट वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन अ मीटर क्यूब. एंड however a popular unit of measuring volume particularly in liquids in liter. हम वॉल्यूम को लीटर से भी पता करते हैं. then but it is not in SI units or SI units. सो अभी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है मास को मेजर करने के लिए. सो हम लोगों ने बचपन से देखा हुआ है तराजू. तो तराजू में हम लोग बेसिकली सब्जियां खरीदते या फिर कोई किराना खरीदते, शक्कर चावल कुछ भी खरीदते, तो तराजू में दुकान वाला हमको तोल के देता है. वैसे ही कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है जो आज के डेज में हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि डिजिटल वेट मशीन्स है. ये भी एक वेट मशीन है जो डिजिटल मशीन के प्रीवियसली ये यूज किया जाता था, मोस्टली लैब में इसका यूज किया जाता है. देन ये वाले भी इंस्ट्रूमेंट्स है डिजिटलाइज्ड. इसमें ग्राम में हमको पता चल जाता है कि हम लोग कितनी क्वांटिटी लेना है और कितनी क्वांटिटी हमको लग रही है. इस दोनों इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि जब हम लोग ओपनली कोई मास को वेट करने के लिए रखते हैं वेट मशीन्स पे, तो उस पे एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट करता है. एक्सटर्नल प्रेशर इट मीन्स कि सराउंडिंग में एयर का दबाव उस पर प्रेशर एक्ट करता है, और वेट जो होता है हमको एक्चुअल वेट ऑफ द सब्सटेंस नहीं मिलता. तो यहाँ इससे क्या होता है कि वो जो दबाव है वो कम हो जाता है और हमें सब्सटेंस का एक्चुअल वेट यहाँ पे पता चल जाता है. तो मोस्टली दिस इंस्ट्रूमेंट इज वेरी इफेक्टिव देन दिस इंस्ट्रूमेंट. मैथमेटिकली अगर हमको वॉल्यूम पता करना है तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड इज इक्वल टू 1 डेंसीमीटर क्यूब. So volume of liquid can be measured by the different devices like burette, pipette, cylinder, measuring flask. All of them are listed below. तो हम लोगों ने बचपन से ज्योमेट्री में पढ़ा है कि किसी भी चीज का वॉल्यूम हमको निकालना है तो उसका एक पर्टिकुलर शेप होना चाहिए. सो स्पीयर के लिए निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, 2πr³/3. सिलेंडर का निकालना है तो 2πr³/3 या फिर इसके लिए दूसरा फॉर्मूला होता है 2πr²/3 है ना. तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम का कैलकुलेशंस करते हैं. बट अगर हमारे पास कोई एग्जैक्ट शेप नहीं होगा तो तब हम क्या करेंगे, जैसे कि लिक्विड हैज नो शेप.
उसको कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, उसे आप सिलेंडर में डालोगे तो सिलेंड्रिकल शेप का हो जाएगा, स्फीयर में डालोगे तो स्फीयर शेप का हो जाएगा। तो हमें अगर एग्जैक्ट उसका यूनिट पता करना है या फिर उसकी क्वांटिटी पता करनी है तो हम कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको पता करना है कि इस ग्लास में कितना पानी है, इस ग्लास में कितना है और इस ग्लास में, हमको दिखाई तो दे रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा पानी है, इसमें कम है और इसमें सबसे कम है, पर कितना, ये कैसे पता करेंगे? इसके शेप से तो हमको पता नहीं चल पाएगा कि ये हाँ ये शेप का है तो ये इस शेप का होगा, ऐसे हमको पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे केमिस्ट्री लैब में हम लोग यूज करने वाले हैं, जैसे कि हो गया कोनिकल फ्लास्क हो गया, देन मेजरिंग सिलेंडर हो गया, ये हमारा सिलेंड्रिकल है, देन मेजरिंग फ्लास्क है। इस तरीके से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे केमिस्ट्री लैब में। दिस इज कॉल्ड एज अ मेजरिंग फ्लास्क। इसमें 1 लीटर, 500 ml, जो आधा लीटर का होता है, 250 ml, अप टू द 10 ml तक के सारे टाइप्स के हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। देन दिस इज अ सिलेंड्रिकल मेजरिंग सिलेंडर हम जिसे कहते हैं। सो ये भी वेरिएबल अमाउंट के मिल जाते हैं हमको, वेरिएबल साइज और इसके मिल जाते हैं। सो 10 ml, 20 ml, 50 ml, 250 ml, 1 लीटर, इस प्रकार से मिल जाते हैं। और एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, ये है ब्यूरेट, जिसे हम ब्यूरेट कहते हैं, केमिस्ट्री लैब में हम लोग यूज करने वाले हैं। ये जो ब्यूरेट है, इससे कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड या फिर कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप इस कोनिकल फ्लास्क में डाल रहे हैं, तो हमें इसके मेजरमेंट से, इसके ऊपर स्केल दी होती है, उस स्केल से पता चल जाता है कि हम लोग कितना ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं। देन ये होता है हमारा कोनिकल फ्लास्क, और इस कोनिकल फ्लास्क पे भी एक नोटेशन होता है, उससे हमको ये पता चल जाता है कि इसमें इतनी ही क्वांटिटी ऑफ लिक्विड आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। देन ये होता है हमारे पिपेट। अगर हमको कोई, हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और हमको बहुत ही कम लेवल का लिक्विड एक्सट्रैक्ट करना है, सपोज इसी में से हमको लिक्विड निकालना है, एक्सपेरिमेंट करते टाइम पे हम लोग ये सारी चीजें करने वाले हैं। जब हमको इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो इससे हम ब्यूरेट से डाल रहे हैं, बट हम ब्यूरेट से निकाल तो नहीं पाएंगे ना, तो उसमें से अगर हमको निकालना है तो हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, पिपेट का। तो ये भी वेरिएबल साइज में हमको मिल जाती है, 5 ml, 10 ml, इस प्रकार से हमको पिपेट मिल जाती है। Density of a substance in amount of mass per unit volume. ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी कैन बी ऑब्टेन एज फॉलोज। अब हमको डेंसिटी का फॉर्मूला तो पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी की हम लोग यूनिट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पहले देख लेते हैं मास डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं रो से। द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एंड ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट or a substance. Simply mass density is denoted as a small rho and mass of unit of volume. तो सपोज हमको अगर किसी सब्सटेंस का पता करना है, तो उसका मास होगा सपोज टू बी 1 मास, एंड उसका वॉल्यूम होगा 1 मास ऑफ वॉल्यूम। इट इज रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और हमको मास की यूनिट पता है kg एंड वॉल्यूम का पता है मीटर क्यूब। जस्ट पुट इनटू दिस क्वांटिटीज ऑफ यूनिट एंड दैट वी विल ऑब्टेन द unit of mass density, that is kilogram per meter cube. Similarly, these are the some different units of the mass density, that is lbm by feet cube, gr by centimeter cube, kg by liter cube, ton by meter cube. देन वेट डेंसिटी। अब हमको मास और डेंसिटी, मास और वेट के बीच का डिफरेंस पता है। मास जो होता है वो मास होता है, एंड देन वेट जो होता है मास इनटू ग्रेविटी होती है। देन द एवरेज वेट ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्जेक्ट और अ सब्सटेंस। सिंपली वेट डेंसिटी d is weight of the unit of the volume. So d is equal to w upon v. Typically the units are Newton per meter cube, lbf by f t cube, grf by centimeter cube. Since हमें पता है कि w is equal to m into g, that g is called as a gravity. Therefore capital D is given by rho upon rho into g. ठीक है, हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे ना वैल्यू को, w is equal to, मैं यहाँ पे आपको करके बता देती हूँ। जो हमारा d है, d is equal to w by v, हमको w की वैल्यू पता है हमें, कैपिटल M G डिवाइडेड बाय V। तो हमको M बाय V की वैल्यू पता है, D इज इक्वल टू रो बाय G। हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
D is equal to rho by G, and the unit is Newton per meter cube, LBF by feet cube, and GRF by centimeter cube. टाइम, सो टाइम जो है हम लोग अलग अलग क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, उसका यूनिट अलग अलग मिल सकता है. अब कैसे? तो बेसिकली हम लोग ने हमारे घर में वॉच देखी हुई है, हर किसी को वॉच बहुत पसंद भी रहती है. सो अलग अलग टाइप्स की वॉच होती है. प्रीवियस हमारे जो एशियन टाइम्स में जो होती थी ट्रिंग ट्रिंग, और अभी जो लेटेस्ट में आता है हमारा वॉच होती है डिजिटल वॉच है, फिट वॉच है, या फिर हम लोग घर के डेकोरेशंस में भी यूज करते हैं बिग वॉचेस. सो इसकी बहुत अच्छी खासियत है कि हम लोग जो टाइम है उसको सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं, मिनट में भी मेजर कर सकते हैं, आवर्स में भी, डे में भी, वीकली, आवरली, हमारा मंथली, ईयरली, इस प्रकार से हम लोग डे को वेरिएबल यूनिट्स में डिनोट कर सकते हैं. सो मोस्टली हम लोग सेकेंड में यूज कर सकते हैं. मिनट में करना होगा तो 1 मिनट हैज अ 60 सेकेंड्स, 1 आवर हैज अ 60 मिनट, और 3600 सेकेंड्स. तो इस प्रकार से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. टेम्परेचर, there are the three scale in which temperature can be measured. These are known as Celsius scale, Fahrenheit scale, and Kelvin scale. So thermometer with the Celsius scale are calibrated from 0 degree to 100 degree. Thermometer with Fahrenheit scale, it's calibrated from 32 Fahrenheit to 212 Fahrenheit. Kelvin scale of the temperature is SI scale, can be very common in this day. The temperature on the scale is shown by the sign K. Temperature on two scale are related to each other by the relationship. These are the different types of instrument. This thermometer is used for in degree Fahrenheit. It is also used, is very common in nowadays. ये जो है इंस्ट्रूमेंट ये नाउअडेज में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ कर रहा है, और ये भी हमको डिग्री फ़ारेनहाइट में ही यूनिट बताता है. ये जो है ये मेडिकली पर्पज़ पे होम बेसिस पे रखा जाता है, हर घर में आपको ये मिलेगा ही. देन फ़ारेनहाइट जो है, अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है तो आपको फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है. तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आपको फ़ारेनहाइट पे मिल जाएगा. अगर आपके पास फ़ारेनहाइट में है, सपोज इसमें आपको फ़ारेनहाइट में मिल रहा है, इसमें भी फ़ारेनहाइट में मिल रहा है, तो आप इससे सिंपली जो C है ये सेल्सियस डिनोट करता है, तो आपको इससे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू मिल जाएगी. सिमिलरली आपको अगर सेल्सियस में है तो केल्विन में मिल जाएगा. सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ऐड करना होगा 273.15 से. तो अगर आपके पास केल्विन में है तो आप आराम से सेल्सियस में यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करके क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. अब है हमें पता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में हमने स्टडी किया है, और उसका हमको अमाउंट पता करना है. अब बाय मास हमको तो ये पता चल जाएगा कि ये कितने ग्राम का है, कितने किलोग्राम का है, बट उसमें कितने अमाउंट का एलिमेंट प्रेजेंट है, सल्फर कितना प्रेजेंट है, सोडियम क्लोराइड कितना प्रेजेंट है. तो हम अभी देख लेते हैं कि हमारे 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है. तो हमें सोडियम का क्वांटिटी पता है बाय फॉर्मूला कि NaCl है, NaCl में Na 1 है, Cl 1 है, एंड द एवरेज एटॉमिक मास उसका 22.99 एंड 35.45 क्लोरीन का. हमें क्या करना होगा, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना होगा उसकी क्वांटिटी के साथ में. क्वांटिटी 1 थी इसलिए हमको एज इट इज वैल्यू मिली, और इसका सब टोटल करना होगा. तो क्या मिल जाएगा हमको, NaCl का मास मिल जाएगा, फॉर्मूला मास मिलेगा, और इससे हमको क्या पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ मास जो है वो सोडियम क्लोराइड का इसमें प्रेजेंट है, इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में कितने अमाउंट ऑफ NaCl प्रेजेंट है. सिमिलरली एक सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें वेरिएबल है. अभी इसमें क्या था कि हमारा 1 था तो बड़ा इजी था. अब थोड़ा सा हार्ड देख लेते हैं हम लोग. तो नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे करली सॉरी हमारे ब्रैकेट में 2 है, इट मीन्स कि ये नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 × 2 8 है, एंड सल्फर 1 है, एंड ऑक्सीजन 4 है. तो हमने यहाँ पे देख लिया कि नाइट्रोजन का अमाउंट यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2, हाइड्रोजन की 8, सल्फर का 1 एंड ऑक्सीजन का 4. तो हमने सिंपली इसको एटॉमिक मासेस के साथ में मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे हमको उसकी वैल्यू मिल गई 28.02, 8.08, 32.07 एंड 64.00, और इसको ऐड करने के बाद हमको वैल्यू मिल गई 132.17. सो इतने अमाउंट ऑफ NH42
SO4 जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका जो एवरेज मास है, फॉर्मूला मास जो है वो क्या है, 132.17। So here we completed that 7 basic fundamental quantities and their units. See you with the next topic, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जिसमें हम लोग इन 7 बेसिक क्वांटिटीज का एप्लीकेशन भी स्टडी करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कौन से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है जिससे हमको बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे केमिस्ट्री को समझने के लिए। सो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में, या फिर जो मैं अभी टॉपिक्स ले रही हूँ, हम लोग 8, 9, 10 का कॉम्बिनेशन यूज करके बेसिक्स टॉपिक को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सो सी यू विद द नेक्स्ट टॉपिक।